Good morning, Sarthak. Switch on your videos, beta. Good morning. Oh, good morning, Kritika. Good morning. Good morning. So till where have we read? Hmm. Till where have we read? Yes. Listening. Good morning, sir. Good morning. We have not read balance and unbalanced force. Hmm. Rashi is saying that we have not read balance and unbalanced force. Have we read balance and unbalanced force? Samriddhi is saying we have to start from second law of motion. Saina is also saying we have not read. Okay, चलो ठीक है, देख लो 2 मिनट का काम है. Arslan, ठीक है, सुनो. So the very first topic is balance force. What is balance force? Suppose this is a pen, ठीक है. हाँ देख लो एक बार. She has not read. So it's a 2 minute topic. देखो, this is a pen, and if I am pulling this pen by some force on both sides, इसको मैं खींच रहा हूँ. तो क्या रहा है, ऑल्दो आई एम अप्लाइंग फोर्स द पेन इज नॉट मूविंग, उसका स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं हो रहा. तो यहाँ पे नेट फोर्स क्या है? व्हाट इज द नेट फोर्स? बताओ. The balance force. अरे बैलेंस की वैल्यू है 0. तो दीज फोर्सेस आर कॉल्ड बैलेंस. अब क्योंकि नेट फोर्स 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा. द एक्सेलरेशन विल बी 0, एंड इफ द एक्सेलरेशन इज 0 then the state of motion will not change, the velocity will remain constant. ठीक है, बनेगा. नहीं बनेगा. ओके, चलो ठीक है. नेक्स्ट है अनबैलेंस. अनबैलेंस मतलब when the net force is not zero. Unbalance means when the net force is not zero. जैसे मैंने कहा कि if I am पेन है, इसको मैं इसे पीछे से धक्का दे रहा हूँ. So since I am pushing it with all my fingers and just suppose हाँ all the fingers are applying different force. अच्छा एक चीज ध्यान रखना, if forces are acting in the same direction they will add up, and if they are acting in the opposite direction they will subtract. ठीक है. तो सपोज मैं इस पेन को खींच रहा हूँ, इधर मैंने लगाया इस तरफ, ये वाला जो हाथ है मेरा, ये राइट हैंड. ऑन द राइट हैंड आई हैव अप्लाइड अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इस साइड से, और इधर मैंने फोर्स लगाया 8 न्यूटन. तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज 8 न्यूटन. व्हाट इज द नेट फोर्स? 2 न्यूटन. So since there is some value of net force is not zero, so what will happen? The object will have some value of force, it will have some value of acceleration, and the state of motion of the object will change. So ये होता है balance force और unbalanced force. Balance force में net force is zero, state of motion does not change, whereas in case of unbalanced force, the state of motion of the object changes. बन जाएगा. है ना. चलो अब नेक्स्ट अपने को पढ़ना है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. फर्स्ट लॉ आई ऑलरेडी टॉट यू. So now we have to read Newton's second law of motion, although I have taught that in class, but few people are not coming to class. Chalo, let me share the screen. तो
now we have to read about, sorry, this is class 10th. Why you people are not speaking? Everybody's chatting. You can speak if there is no noise in your surrounding. Class 9th. New page. चलो देखो यहाँ पर. Next topic is Newton's second. The chat makes no noise. Okay. Newton's second law of motion. एक मिनट. हाँ. Now we are reading Newton's second law of motion. What is second law of motion? Second law of motion states that force acting on an object is directly proportional to rate of change of momentum. That is change in momentum divided by time. Yeah, ठीक है. This is Newton's second law of motion. Now, भैया, so before, sir, your voice is coming low. Okay, Anvesha, what can I do? हाँ हाँ डाल दीजिए. Yes. My voice is coming low because I think my internet connection is not good, but please try to raise the volume of your phone or whatever you have. See, Newton's second law of motion कहता है सबसे पहले it is defining force and it states that the force acting on an object is directly proportional to the rate of change of momentum or change in momentum per unit time. This is what Newton's second law of motion states. ठीक है. Now before studying this thing we have to study about momentum. ठीक है. पहले अपन momentum पढ़ लेते हैं. Momentum क्या होता है? Let me read about momentum. What is momentum? It is denoted by the letter P. It is a vector quantity and it is equal to the product of mass and velocity. जिसके ऊपर भी arrow लगता है ना बेटा वो एक vector quantity होता है. ठीक है. So momentum is product of mass and velocity. Now momentum क्या बताता है? अच्छा पहले इसका unit देख लेते हैं. Unit of mass is kilogram. Unit of velocity is meter per second. So the SI unit of momentum is kg meter per second. जो velocity का direction है वही momentum का direction है. ठीक है. आगे देखो. अब व्हाट इज द यूज ऑफ मोमेंटम? व्हाई आर वी कैलकुलेटिंग मोमेंटम? सो इसके लिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं. सपोज दिस इज अ बॉय, ब्यूटीफुल बॉय. दिस इज अ ब्यूटीफुल बॉय. This boy is standing here. He is standing in between the road. उसको समझ नहीं आ रहा कि what he has to do. एक मिनट ना, वेट अ मिनट. So this is a person. Now he is standing in middle of the road. यहाँ से एक साइकिल वाले भैया is coming. This is साइकिल वाले भैया riding the cycle very fast. Okay. And from here truck वाले भैया is coming. ट्रक वाले भैया riding a loaded truck very fast. This is the truck wale bhaiya who's coming. Now suppose mass of the cycle and this boy who's riding is 60 kilogram.
एंड वेलोसिटी ऑफ दिस साइकिल एंड द बॉय से सपोज कर लो 20 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। मास ऑफ दिस ट्रक इज 7 टन होता है लोडेड ट्रक, 7 टन मतलब 7,000 kg। एंड जस्ट सपोज वेलोसिटी ऑफ दिस ट्रक इज, छोटा ले लो 5 ले लो, 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ दिस ट्रक इज कोलाइडिंग विद दिस हैंडसम गाय, ठीक, एंड दिस साइकिल इज ऑल्सो कोलाइडिंग विद दिस हैंडसम गाय। तो इन विच केस इसमें चोट ज्यादा किस में आएगी बताओ? सर बाय ट्रक। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, सब लोग कह रहे हैं इन केस ऑफ कोलाइडिंग विद ट्रक, यस। ओके, स्वाति, स्वाति वाज देयर इन यस्टरडेज क्लास में। हाँ, velocity ट्रक का is less and cycle का velocity is more, but still the truck is causing more damage. Why? Because इसका जो momentum है ट्रक का, pt ले लेते हैं, कितना आएगा? 7 5 35 mass into velocity, 35,000 kg मीटर पर सेकेंड। और इसका मोमेंटम कितना आएगा ऑफ साइकिल? ये आ जाएगा 6 2 12, 1200 kg मीटर पर सेकेंड। तो ग्रेटर इज द मोमेंटम, ग्रेटर इज द इम्पैक्ट। तो मोमेंटम क्या बताता है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से कोलाइड करता है तो उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है। जिसका मोमेंटम जितना ज्यादा होगा, इम्पैक्ट उतना ज्यादा होगा। अब अपन वापस आ जाते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताता है बेटा कि द फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब या तो रेट बोलो या तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम बोलो, दोनों बात एक ही है। देखो यहाँ, तो जैसे मान लो सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी u। इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगा F। ड्यू टू फोर्स व्हाट विल हैपन? द ऑब्जेक्ट विल एक्सेलरेट। फॉर हाउ मच टाइम इट इज एक्सेलरेटिंग? टाइम t। और टाइम t के बाद क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v। तो व्हाट इज द कह रहा है चेंज इन मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा? इनिशियल मोमेंटम इज m into, सॉरी, initial momentum is m into u. What is the final momentum? m into v. किसी भी, सॉरी, किसी भी चीज में चेंज कैसे निकालते हो? हाउ टू फाइंड चेंज इन एनी ऑफ द क्वांटिटी? बाय सब्ट्रैक्टिंग द इनिशियल वैल्यू फ्रॉम द फाइनल वैल्यू, ठीक है। तो चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। व्हाट इज कॉमन? m इज कॉमन, अंदर क्या बचा? v माइनस यू बाई टी। व्हाट इज v माइनस यू बाई टी? इट इज m इंटू ए। v माइनस यू बाई टी एक्सेलरेशन होता है, तो फोर्स का फॉर्मूला आ गया। तो एक नंबर का एक सवाल होता है कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसको डिफाइन करता है? सेकंड लॉ ऑफ मोशन फोर्स को डिफाइन करता है। और क्या बोलता है? फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। या तो रेट बोलो, रेट मतलब पर यूनिट टाइम, या तो फिर बोलो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, ठीक है। लेकिन अगर रेट लगा रहे हो तो फिर बाद में टाइम मत लगाना। इज इट क्लियर? बन जाएगा सबसे। चलो आगे देखो। नाउ इफ यू लुक एट द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज कॉल्ड न्यूटन। क्या बोलते हैं इसको? न्यूटन। दिस इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ठीक है, न्यूटन। अब किसी ने कहा डिफाइन 1 न्यूटन। न्यूटन को अपन डिनोट करते हैं कैपिटल एन से। क्या किसी ने कहा डिफाइन 1 न्यूटन? तो एफ का फॉर्मूला है m इंटू ए। 1 न्यूटन कब आएगा? जब मैं मास को मान लूँ 1 kg और एक्सेलरेशन को मान लूँ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 न्यूटन। अब कैसे बोल सकते हो? इफ अ मास ऑफ 1 kg is accelerated by 1 meter per second square, then force acting on the object is said to be 1 Newton. If a mass of 1 kg is accelerated by 1 meter per second square, then force acting on the object is said to be 1 Newton. बन जाएगा डेफिनेशन ऑफ 1 न्यूटन। ओके, चलो ठीक है। अब इसके बाद एक एप्लीकेशन है इस फॉर्मूले का कि भाई कहाँ यूज हो सकता है ये फोर्स के जो डिफरेंट अपने फॉर्मूले आ रहे हैं।
अपन पहले ये वाला फॉर्मूला लेंगे, F इज इक्वल टू एम v माइनस यू बाई टी। इस फॉर्मूले को अपन लेते हैं। अब सुन लो, जैसे F है, मास न्यूमरेटर में है, v माइनस यू भी न्यूमरेटर में है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जो भी चीज न्यूमरेटर में होती है किसी क्वांटिटी के अगेंस्ट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और कोई भी चीज अगर डिनोमिनेटर में होती है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे टाइम है, ये डिनोमिनेटर में, तो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि जो फोर्स है वो टाइम को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब एज द टाइम विल इंक्रीज फोर्स विल डिक्रीज। ठीक है, तो इसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, व्हेन अ क्रिकेटर इज ट्राइंग टू कैच अ बॉल, व्हाट इज ही डूइंग? वो अपना हाथ क्या करता है, ऐसे कैच ऐसे करता है ना, दे आर लोवरिंग देयर हैंड टू कैच द बॉल। व्हाई दे आर लोवरिंग देयर हैंड? हु विल टेल दिस आंसर? स्पीक करना, हाँ, ऐसा चैट में नहीं बताना। टेल मी, why a cricketer is lowering his hand in order to catch a ball? हम्म, बताओ बेटा, कौन बताएगा? Nobody will tell. So, as it will increase the time. Hmm. It will increase the time of contact between the ball and the hand. As the time of contact will increase, the force acting on his hand due to the ball, that force will decrease. उससे दो चीजें होंगी, उसके हाथ में चोट भी नहीं लगेगी, and he will be able to catch the ball easily. क्लियर है? नहीं क्लियर है? देखो यहाँ पे, आई एम शोइंग यू द डायग्राम व्हिच इज गिवन इन द एनसीईआरटी। बुक लेके आप लोग बैठा करो, ठीक है? दैट विल बी अ गुड थिंग। एक मिनट बेटा, थोड़ा स्लो हो गया है सिस्टम। See, this diagram is given, and with the help of this diagram you can tell. दिया है डायग्राम, फिगर 9.8। तो व्हाट इज डूइंग, ही इज लोअरिंग हिज हैंड, है ना? जैसे वो हाथ लोअर कर रहा है, तो टाइम ऑफ कांटेक्ट ऑफ द बॉल विद द हैंड, जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है, टाइम बढ़ रहा है। टाइम बढ़ रहा है तो फोर्स कम हो जा रहा है, फोर्स डिक्रीज हो रहा है, तो वो आराम से बॉल कैच कर ले रहा है। ठीक, चलो, नाउ वी विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। अब सुन लो, जहां भी फोर्स लगेगा वहां पर क्या होगा? एक्सेलरेशन। और जहां भी एक्सेलरेशन होगा वहां पे वेलोसिटी चेंज होगी। और अगर वेलोसिटी चेंज होती है और आपसे पूछ लेता है कि इनिशियल इतनी है, फाइनल कितनी होगी, तो आप किसका यूज करोगे? इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे। व्हाट आर इक्वेशन ऑफ मोशन? तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एस। तो ये जो क्वेश्चन ऑफ मोशन है ना, ये आपको नाइन्थ में भी यूज है, टेंथ में भी लगेंगी, 11th फिजिक्स में भी है, 12th फिजिक्स में भी है, ये आपका कभी साथ नहीं छोड़ेंगे। देखो यहाँ पे, दिस इज वन क्वेश्चन गिवन ऑन द स्क्रीन। ओके, बनता है, कितने सारे लोग को बनता है वाला क्वेश्चन? कल क्लास कौन आया था? एंड हु विल बी कमिंग टू स्कूल टुडे? दोज हु हैव केम टू क्लास यस्टरडे। आई केम यस्टरडे। समृद्धि, स्वातियां, स्वाति से तो आई मेट यस्टरडे, समृद्धि से भी आई मेट। चलो ठीक है, देखो अब देखो न्यूमेरिकल कैसे करना है। सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख लेना है, जो निकालना है उसको भी लिख लेना है, फिर आपको सोचना है कौन सा फॉर्मूला आपको लगाना है। देखो यहाँ पे कह रहा है, अ फोर्स, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 5 kg। पहले जो गिवन है उसको लिख लो, मास कितना दिया है?
5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। टाइम कितना दिया है? 2 सेकेंड। फिर बोल रहा है इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7। जो वेलोसिटी पहले दी है वो इनिशियल, जो बाद में दी है वो फाइनल। ठीक है, तो इनिशियल कितना दिया है? दिव्यांशी के, हाँ दिव्यांशी आई सॉ यू। इनिशियल इज 3 मीटर पर सेकेंड, फाइनल इज 7 मीटर पर सेकेंड। पहले गिवन आप लिख लो। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। पहले पहला पार्ट अपन करते हैं। यहाँ पे अपने को एफ निकालना है। अब एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एफ का फॉर्मूला होता है एम इन टू ए। एम तो दिया है, ए नहीं दिया, तो इसके पहले ए भी अपने को निकालना है। ए का फॉर्मूला क्या होता है? ए का फॉर्मूला होता है वी माइनस यू बाई टी। जिसको फॉर्मूला याद है उसी से बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, सार्थक एज गिवन आंसर। अन्वेषा, इच्छा। देखो ए का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? वी माइनस यू। वी कितना दिया है? 7 माइनस यू कितना दिया है? 3 बाई टी। टी कितना दिया है? 2। ए आ गया 4 बाई 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ का फॉर्मूला क्या होता है? एम इन टू ए। एम कितना दिया है बेटा? एम दिया है 5। ए कितना दिया है बेटा? ए दिया है 2। 5 टू द कितना आंसर आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द, अरे मीटर पर सॉरी 10 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन इज द फोर्स। अब कह रहा है नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकंड। अब नया टाइम दे दिया। व्हाट इज द न्यू टाइम? 5 सेकंड। व्हाट वुड बी द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट? ठीक है, सार्थक सबका आंसर है। चलो अब कह रहा है कि उसी फोर्स को मैं 5 सेकंड तक अप्लाई कर रहा हूँ। मैंने टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ फोर्स इंक्रीज कर दिया। सॉरी, इफ आई एम इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन फॉर विच द फोर्स इज एक्टिंग, तो एक्सेलरेशन भी देर तक लगेगा। एक्सेलरेशन देर तक लगेगा तो बॉडी की रफ्तार और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी होती है वो हमेशा क्या रहेगी? वो हमेशा सेम रहेगी, वो कभी चेंज नहीं होती। कल मैंने क्लास में भी एग्जांपल दिया था कि अगर मैं कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना, मान लो मैंने 10 रुपए से स्टार्ट किया, 1 साल बाद मैंने 1 लाख रुपए कमा लिए, 2 साल बाद मैंने 10 लाख कमा लिए, 3 साल बाद मैंने 50 लाख कमा लिए। तो मेरा जो प्रॉफिट है वो तो हर साल चेंज होता रहेगा, वो तो बढ़ता घटता रहेगा। लेकिन जो मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट था बिजनेस में वो तो हमेशा के लिए सेम रहेगा ना। अगर मैंने 10 से स्टार्ट किया वो तो हमेशा 10 ही रहेगा। तो इनिशियल कभी चेंज नहीं होता। फिर बोल रहा है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 व्हाट वुड द फाइनल। अच्छा, कह रहा है इफ द सेम, इफ द फोर्स, मतलब वही फोर्स की बात करें, सुन लो, अगर आप वही फोर्स लगा रहे हो तो एक्सेलरेशन आपका चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा। तो कितना आएगा एक्सेलरेशन? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे टी दिया है, यू दिया है, ए दिया है, आपको वी निकालना है। क्या पुट करोगे? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना दिया है? 3। ए कितना दिया है? 2। टाइम कितना दिया है? 5। कितना आ गया? 3 प्लस 2 5 10 दैट इज 13 13। मीटर 13 मीटर पर सेकेंड। गुड समृद्धि, बन जाएगा सबसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, Yes, sir. ये सब कॉपी में करना है क्वेश्चन एंड दोज हु आर कमिंग टू स्कूल टुडे कंप्लीट योर नोटबुक एंड कम। This chapter as well as the previous chapter. नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। बाकी वाले क्वेश्चन एग्जांपल यू डू सॉल्व इट बाय योर ओन। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू। कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन। सबसे पहले गिवन देख लो, मास कितना दिया है? 20 ग्राम।
कौन सा ग्राफ दिया है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन, ठीक है। सर वॉइस इज लो, ओके, अब ठीक हुई, आ रही है। एक्चुअली आई एम सिटिंग इन द फिजिक्स लैब, तो यहाँ पर since the lab is completely empty the voice is echoing. स्वाति के कान सही है, दिव्यांशी के कान भी ठीक हो गए, ओके। ठीक, तो कह रहा है द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 20 ग्राम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ लॉन्ग टेबल इज गिवन। वीटी ग्राफ आपको दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। अब कह रहा है कि हाउ मच फोर्स, आपको फोर्स निकालना है, एफ यू हैव टू कैलकुलेट। एफ का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज गिवन बट एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन, तो एक्सेलरेशन को आप लिख दो क्वेश्चन मार्क, ठीक। अब देखो यहाँ पे कह रहा है बॉल का मास दिया है 20 ग्राम और ये वीटी ग्राफ दिया है। यहाँ पे पहले आप यूनिट देख लो, वेलोसिटी किस में दी है? वेलोसिटी दी है सेंटीमीटर पर सेकंड में। ईक्षा सिंह, हाँ देखो सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। अब the first thing that you have to do is you have to find the initial velocity and the final velocity and the time from the velocity time graph, ठीक। पहले वो निकालना रहेगा। कैसे निकालोगे? देखो यहाँ पे ये देखो, ये ओरिजिन है, आपने मैथ पढ़ी है, ये एक्स एक्सिस है और इसको सपोज वाई एक्सिस मान लो। आपको क्या पता है एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है? बताओ, एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू क्या होती है? 0, गुड सर 0। हाँ, और y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होती है? 0। अब अगर आप इस ग्राफ को 0। ध्यान से देखो तो ये ओरिजिन है ना, ये आप y एक्सिस पे आ जाओ। y एक्सिस पर ग्राफ 20 से स्टार्ट हो रहा है, वेलोसिटी मतलब 20 है, लेकिन y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होगी। x क्या शो कर रहा है? टाइम, मतलब जब वेलोसिटी 20 है तो टाइम कितना है? 0। इसका मतलब टाइम 0 पर कौन सी वेलोसिटी आती है? initial velocity, so u will become 20 centimeter per second। क्लियर है? फिर से सुन लो, y एक्सिस पर टाइम 0 हो जाएगा। टाइम 0 मतलब जब आपने ऑब्जेक्ट को पहली बार देखा और वही होती है इनिशियल, तो इनिशियल आ गया 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो u की वैल्यू आपको मिल गई 20 सेंटीमीटर पर सेकंड। फिर टाइम कितना हो गया? टाइम हो गया 10। जब टाइम 10 हो गया तो यहाँ पर x एक्सिस पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0, तो फाइनल वेलोसिटी 0। आपको u मिल गया, आपको v मिल गया, आपको t मिल गया, ठीक है। सबने कर दिया, वेरी गुड। अब इसको देखो, वेलोसिटी दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड में, यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकंड। हाउ यू विल कन्वर्ट? 1 सेंटीमीटर होता है 1/100, तो ये हो जाएगा 20/100 मीटर पर सेकंड। तो आपका F हो गया m इंटू ए। अच्छा, मास दिया है ग्राम में, तो किस में कन्वर्ट करोगे? किलोग्राम में। कैसे करोगे? डिवाइड बाय 1000, ये केजी में हो गया। 1 0 कैंसिल, तो ये हो गया 0.02, ठीक है। पुट कर दो वैल्यू 0.02 इंटू एक्सेलरेशन। v कितना है? 0। u कितना है? यहाँ देखो u आपका ये कट गया, u आ जाएगा 0.2 अपॉन टाइम कितना है? 10, तो f हो गया 0.02 इंटू माइनस 0.02, तो आपका नहीं 0.02, हाँ, तो F आ जाएगा आपका 0.0004 न्यूटन। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है? चलो ओके, तो सी, हाँ ठीक है, बंद करो। तो दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब इसके बाद रेस्ट ऑफ द एग्जांपल्स आर होमवर्क फॉर यू, सॉल्व इट एंड ब्रिंग इट इन अ कॉपी, विल स्टडी टुमारो, ठीक। ओके चलो ठीक है, आई हैव टू गो ऑन बट आई हैव अ क्लास। ओके चलो, थैंक यू, बाय बाय। चलो पढ़ लेना, ठीक है। चलो बाय बाय बाय।